What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 29th of Jan, and yet again we saw a wide range volatile day ahead of budget. The markets opened pretty flat, and within the first couple of minutes we entered into the yesterday's territory, and within the first 20 minutes we briefly breached the yesterday's low, and wahan pe liquidity absorb karke the markets did a U-turn. The markets rallied almost 300 points from the day's low. Sensex, which had its monthly expiry, even it rallied almost 1000 points from its day's low. The Sensex straddle opened at somewhere around 450, which was expected, but because the Sensex broke the yesterday's low within the first 20 minutes, the Sensex straddle spiked back to 480, 490 levels for a brief period of time. This spike was instantly consumed, but हमने ये चीज डिस्कस किए थे कि अगर straddle 450 के आसपास ओपन होगा and 15-20 मिनट्स के अंदर मार्केट 300-400 पॉइंट्स का एक डायरेक्शन में एक मोमेंटम दिखाएगा, then there's a probability that the straddle will again spike back to 500 levels. And once the market started heading back up, there was a steady but linear crush in the walls, and yes, it was not an easy expiry, but of course towards the end of the day we got some decent theta post 2 o'clock. So while we were busy with the monthly expiries, the talk of the town has been the metals. Silver last एक महीने से continuously move कर ही रहा था, but gold was little subdued. But today even the gold woke up from its sleep and gold closed almost 7% in green. Silver obvious की बात है 5.5-6% green में close कर ही रहा था, and इसके साथ साथ copper, aluminium, zinc and all the associated stocks, everything blasted. So tomorrow is the last trading day before the budget day, and straddles again even today the straddles got crushed by almost 40 points. कल 400 के आसपास straddle close हुआ था निफ्टी का straddle, and आज the same straddles closed at 370. The markets are not even pricing in 2% of the move ahead of the budget, so most probably कल straddle spike हो सकता है. And let's get to the terminal and let's see अगर हमको ट्रेड करना भी है तो क्या ट्रेड्स कर सकता है. All right, डेली कैंडल अगेन अ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुका है, एंड इंट्राडे में जो भी डिप आ रहा है इट इज गेटिंग अग्रेसिवली बॉट, एंड यहाँ पे एक बेस बन चुका है एंड 25,000 लेवल्स आर बीइंग रेस्पेक्टेड, एंड यहाँ पे क्लोजिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग मिल रहा है, विच मेक्स मी थिंक दैट मार्केट्स ने जो रेंज शिफ्ट करने वाला है आफ्टर द बजट इट शुड बी ऑन दी हायर साइड. तो कल भी मैं बता रहा था 65-70% प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट करने वाला है, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. बजट होने दो, बजट के बाद 2 या 3 ट्रेडिंग दिन होने दो, उसके बाद हमको एक एक्चुअल डायरेक्शन मार्केट्स में पता चलने वाला है. सो लोअर टाइम फ्रेम पे निफ्टी की जगह लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स, बिकॉज सेंसेक्स हैड द मंथली एक्सपायरी टुडे, एंड हमने 2 चीज डिस्कस किए थे. वन इज शॉर्ट ट्रेड्स कहाँ पे लेना था, हमने कल डिस्कस किए थे कि नॉट टू ट्रेड द ब्रेकडाउन, बट एक ब्रेकडाउन होके रीटेस्ट जब आएगा तब हमको शॉर्ट करने के लिए हमने डिस्कस किए थे. एंड इफ यू डिड फॉलो द एडवाइस, इफ यू डिड फॉलो द एनालिसिस, देन यू वुड हैव सेव्ड हियर, or probably would have gone long also, but hopefully that advice kind of came in handy. ठीक है, and हमने ये भी डिस्कस किए थे कि आज के लिए रेजिस्टेंस ये बनने वाला है, बट मार्केट्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया, बट वी डिस्कस दैट यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आता है तो जो 82-500 call options would be available at 150. So even if you had shorted this at 150, so yes, at one point it went up till 220-230 levels, but towards the end of the day it closed somewhere around 60. So stop loss तो नहीं हिट हुआ होगा because it is an expiry day, तो most probably आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा. बट या आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू रेस्पेक्ट दिस रेंज, बट यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट हो गया था. देन इवन आई वॉज अ बिट पैनिकी, थोड़ा बहुत पैनिक मैं भी हुआ, एंड थोड़ा कॉल्स को मैं रोल करके 82-700 पे मैंने लेके गया था, एंड 82-700 पे मैंने स्ट्रैडल भी थोड़ा बहुत बिल्ड किया था. बट वंस दिस कैंडल स्टार्टेड फॉर्मिंग अराउंड 2-3 o'clock, then I realized that this would be the high, and then I started adding on to the calls aggressively. So for me personally, the day was all right. I made somewhere around 0.4%, and मैक्सिमम जो दिन में जो नेगेटिव गया था इट वाज समवेयर अराउंड 0.1% नेगेटिव गया था, बिकॉज एट दिस पॉइंट when the markets breached here, I kind of got stuck on the puts, and थोड़ा बहुत मतलब वहाँ पे wall spike भी हुआ था, तो at that point I had to hold on to my puts and 0.1% loss हुआ था, but after that then it was pretty much a smooth expiry. But अगर आपने calls को सही टाइम पे कॉल से आप निकले नहीं, एंड इफ यू आर काइंड ऑफ एडमेंट एंड इफ यू हेल्ड ऑन टू द कॉल सेइंग दैट ओ इस लेवल ब्रीच होने तक मैं होल्ड करूंगा, देन दिस 80-500 कॉल्स विच एट वन पॉइंट वर ट्रेडिंग एट 30 रुपीज स्पाइक्ड ऑल द वे टिल 220-230 एज वेल. अगर वॉल्स की बात करें
तो वी डिस्कस दिस 450 के आसपास ओपन होने वाला है एंड वी ऑल्सो सॉ दैट अगर मार्केट्स फर्स्ट 15-20 मिनट्स में एक 300-400 पॉइंट्स का एक डायरेक्शनल मूव दिखाएगा देन ऑब्वियसली द स्ट्रैडल विल ऑल्सो स्पाइक बैक अप. तो 413 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 480 490 तक ऑलमोस्ट स्ट्रैडल स्पाइक देखने को मिला है. एंड आफ्टर दैट it wasn't such a quick decay today but rather a steady and slow decay. तो अगर आप देख सकते हैं कि like even up till 130 the straddle was trading at 270 which was quite strange because अगर आप लास्ट 2-3 महीने का जो भी सेंसेक्स का एक्सपायरीज देखते हैं 130 2 o'clock के आसपास 200 के नीचे स्ट्रैडल रहता था बट टुडे 270 के आसपास स्ट्रैडल रहता था. एंड इवन अराउंड 3 o'clock the OTM वन स्ट्राइक OTM ऑप्शंस वर ट्रेडिंग एट अ very decent premiums. अगर आप 100 पॉइंट्स का दूर का भी कॉल्स एंड पुट्स बेचते तो दैट itself would have given you 0.15-0.2% on the margin. So tomorrow again we have to be trading Nifty because Nifty का जो वीकली एक्सपायरी है वो आफ्टर द बजट है. So most probably tomorrow मैं ट्रेड अवॉइड करना चाहता हूँ बिकॉज कल मार्केट्स वॉल का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होने वाला है ना प्राइस एक्शन प्रेडिक्टेबल रहने वाला है. बिकॉज मैं कल ही बोल रहा था कि मार्केट्स शुड आइडियली होल्ड दी स्ट्रैडल्स एट समवेयर अराउंड 400 लेवल्स के आसपास स्ट्रैडल्स होल्ड कर लेनी चाहिए. बट टुडे ऑल्सो द स्ट्रैडल काइंड ऑफ गॉट क्रश्ड. 400 से ऑफकोर्स थोड़ा बहुत 420 के आसपास स्पाइक देखने को मिला बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बिकॉज द मार्केट्स इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड देन 25,000 लेवल इज एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ सीमेंट, एक बेस जैसे बन रहा है. बिकॉज ऑफ दैट you notice that almost एक 30-35 पॉइंट्स का एक स्ट्रैडल डीके देखने को मिला है. बट अगेन 370 पॉइंट्स विच मीन समवेयर अराउंड 101.5% एंड बजट का जो मूव है कहीं ना कहीं लाइक लेस देन 1% मार्केट प्राइस इन कर रहा है विच इज आई फील सुपर अंडर वैल्यूड. तो प्रीमियम्स काफी सस्ते लग रहा है मुझे. सो बट आई एम नॉट गोना गो एंड बाई दिस बिकॉज इतना आसान भी नहीं है कि प्रीमियम सस्ते लग रहा है तो पूरा मतलब मार्जिन लगा के आप बाई कर लो, ऐसा भी नहीं होने वाला है. बट सिंस माय एक्सपर्टीज इन ट्रेडिंग शॉर्ट साइड ऑफ द मार्केट्स, बेसिकली शॉर्ट वॉल या शॉर्ट गामा में ट्रेड करूंगा, तो व्हेनेवर द प्राइसेस आर नॉट टू माय लाइकिंग आई विल नॉट गो लॉन्ग वॉल बट रादर आई जस्ट सिट ऑन द साइडलाइंस. तो कल के लिए मेरा सेम अप्रोच रहने वाला है. इट्स अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ अ मार्केट. इवन दो द मार्केट कम्स टू द ओवर एक्सटेंडेड लेवल्स एंड एक रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा या सपोर्ट लेवल पे आएगा, देन ऑल्सो आई विल नॉट ट्राई टू टेक एनी ट्रेड्स बिकॉज बजट है एंड कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आता रहेगा कि लाइक ओ बजट में ये अनाउंस करने वाले हैं, वो अनाउंस करने वाले हैं. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चॉपिंग एंड एट द सेम टाइम दिस स्ट्रैडल प्रीमियम यू विल नेवर नो, दिस ईदर होल्ड्स अराउंड 370 400 के आसपास वापस होल्ड करेगा और इट कैन इवन स्पाइक बैक अप ऑल द वे टिल 450 एज वेल बिकॉज फ्राइडे के बाद सैटरडे एक छुट्टी है, देन मार्केट्स गोना ओपन ऑन संडे. सो डीके पैटर्न भी थोड़ा अलग रहने वाला है एंड 370 ये मेरे लिए तो मतलब ठीक नहीं लग रहा. इफ वी वर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 500 मैं फिर भी बोल सकता था कि चलो अगर डायरेक्शनल ट्रेड भी कर सकता है. बट यहाँ पे मार्केट्स आपके डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी आपको इतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है इफ यू आर शॉर्टिंग द ऑप्शंस. सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो विल बी अ डे टू अवॉइड. बट अगर आपको ट्रेड करना ही है तो सिर्फ 10% साइज से ट्रेड करो एंड वो क्या ट्रेड्स हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो टुमारो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये हाई को तोड़ता है, मार्केट फ्लैट खुल के ये हाई को तोड़ता है विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड विद द दिस पर्टिकुलर लो 25,400 एज द स्टॉप लॉस. तो बेसिकली हमको 30 to 40 पॉइंट्स का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हमको ट्रेड करना है एंड ये जो अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.2% ऑफ योर कैपिटल. तो उतना ही रिस्क लेना है कल के लिए बिकॉज अगर कल के लिए बेसिकली आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कल पैसे बनाने वाला दिन नहीं है बट रैदर just to like practice how the market behaves ahead of some major event. तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने को मिला है. यहाँ पे एक 24,900 के लेवल, 25,000 के लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट जैसे दिख रहा है. बट अगेन यहाँ पे लॉन्ग जा सकता है बट विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. ये मत देखो कि ओ मार्केट्स वापस आएगा तो यहाँ से यस कंटिन्यूसली जो डिप्स है कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं बाई हो रहा है तो लेट्स होल्ड ऑन टू माय ट्रेड्स. नहीं, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है. काफी सिंपलिस्टिक रखेंगे. अगर ये हाई को मार्केट फ्लैट ओपन करके तोड़ता है तो देन विल गो लॉन्ग विद दिस एज द स्टॉप लॉस. कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 40 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा. आप मैक्सिमम 60 to 80 पॉइंट्स आप टारगेट करो. डोंट कीप एक्सेस टारगेट्स बिकॉज 25,500 के आसपास भी हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. एंड बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लाइक या यू कैन सी दैट 25,600 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है एंड 25,500 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है. तो आपको ज्यादा टारगेट नहीं मिलने वाले. अगर आपको प्राइस एक्शन क्लीन भी मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट्स यहाँ पे
लॉन्ग ट्रेडर्स को ट्रैप करके मार्केट्स यहाँ पे 25,500 से वापस एक रिवर्सल देखने को मिले. सो 1:1 जैसे मिल जाता है, प्रोबेबली यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट. एंड शॉर्ट की तरफ से ट्रेड कब बनेगी? शॉर्ट की तरफ से अगर मार्केट 25,620 लेवल्स, ये जो 25,600 25,650 के बीच अगर मार्केट आएगा बाय ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, कम से कम इंट्राडे में 150 पॉइंट्स डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ना कि सिर्फ गैप के साथ मार्केट्स 25,650 पे आना है. तो अगर मार्केट ट्रैवल करके 25,650 के आसपास आएगा, देन दैट प्रॉम्प्ट्स अ लॉट ऑफ दीज लॉन्ग्स टू बुक देयर प्रॉफिट्स, एंड यहाँ पे थोड़ा इनिशिएटिव शॉर्ट्स भी एक्टिवेट हो सकता है. तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, एक हाई रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी बन सकता है. बट अगेन सिर्फ लेवल्स पे आप काम मत करो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, लुक फॉर द रिवर्सल पैटर्न्स, डबल टॉप, एम पैटर्न, इनगल्फिंग कैंडल. एंड कल के लिए ऑप्शन चेन पे लिक्विडिटी स्वीप मत देखो, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी जंपी, ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी अ लिटिल एराटिक बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द बजट. सो बहुत से जो फंड हाउसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पॉट का प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन का प्राइस एक्शन में थोड़ा कल आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है. What if the market gaps down? अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो देन अ लॉट ऑफ पीपल गेट ट्रैप, बिकॉज मार्केट्स में कल भी ज्यादातर लोग इस रेंज में बाइंग किए हैं एंड आज भी ज्यादातर लोग इस रेंज में बाइंग किए हैं. सो अगर मार्केट्स गैप डाउन खुल जाता है तो मेरे लिए बिल्कुल नो ट्रेडिंग डे बनने वाला है. आई विल नॉट ट्राई टू गो लॉन्ग अगेन हियर एंड नीदर आई विल शॉर्ट द मार्केट्स हियर. तो मेरे लिए कल सिर्फ एक ही सिनेरियो है, मार्केट्स को फ्लैट खुलने चाहिए, बेसिकली 25,350 के ऊपर खुलनी चाहिए, एंड विद इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स इस ब्रेकआउट, इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए, एंड विल ट्रेड द ब्रेकआउट इटसेल्फ, विल नॉट वेट फॉर द रीटेस्ट, विल ट्रेड द ब्रेकआउट इटसेल्फ. यस, थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, बट सिंस हमारे पास एक लॉजिकल लेवल है स्टॉप लॉस रखने का, दैट इज समवेयर अराउंड दिस. तो 25,400 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड अराउंड 60 to 80 पॉइंट्स का टारगेट रख के 25,500 25,520 के आसपास हम लोग बुक कर लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, let the market do whatever it wants, and we'll come back on the budget day. And also budget के आसपास, budget के पहले on Saturday we are planning a live YouTube session. मैं, सारंग और निखिल प्लान कर रहे हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट्स. जितना रेस्पॉन्स आएगा उतना हम लोग प्रिपरेशन के साथ आएंगे. हम बात करेंगे कि बजट के दिन वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, गामा ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, व्हाट हैज वर्कड आउट, व्हाट हैज नॉट वर्कड आउट. विल डू अ लाइव सेशन, विल टेक योर क्वेश्चंस, एंड जो भी आपका क्वेरीज है विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स if you're looking forward for it. All right, so I'll see you after tomorrow's market action, and I'll see you during the live session as well. So till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.